ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਏ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਝੂਠ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ? ਬਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਖੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਣ ਓਏ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਣ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ FIR ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ FIR ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਹਲਵੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਰਤ ਹਲਵੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਬਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲੁੱਟਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਲੁੱਟਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जाओ चलिए लूटिए दूर जाके जिदा कमर्शियल से कि आओ दोस्तों खून चूसने चलते हैं। हद हो गई है यार। मतलब है कि ताडे सरकारी मुसलमाना ने ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਫਰ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ? आप पढ़ना लिखा गरज जब वो तजारती काफिला जिसके ताकुब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए। क्यों रवाना हुए सी जी मदीने तो तजारती काफिला की करना सी उन्होंने दस देंगे क्यों रवाना हुए सी। झूठ मारिया वा ओ ते लेके आओ दा ते सबूत लेके आ। चल इधर दस ना, इधर दस क्यों रवाना क्यों? तेरी गल दा सबूत ही नहीं है तो मैं तैनूं एवें इहदे ते जवाब दे दियां। सबूत गल तो कोई करन दिया कि सरकारी ते अमानत च खयानत कीती आ। सरकारी तू कोई होर शय लेके आ गए ते कहना इहदा जवाब दे। अपना ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਪੜਨ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਪੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਜਿੱਥੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਨਤ ਅਮਾਨਤ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਪੜਨ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। वो आ गया दोस्त मेरा, आ गया यार मेरा आ गया जी। एक मिनट फुरकान आ गया यार, आ गया जी। फुरकान साहब मैं ना ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੋ। ਇੰਜ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा जी, चलो जी, मैं लिखदा वां। ये सरकारी मुसलमान की फरमांदे ने अपनी किताबां दे अंदर नबी दा किरदार माशाअल्लाह बयान हो रहा है, जो कि मुनकरीने अंबिया जड़े ने या ईसाई या यहूदी जड़े ने इतराज करते हैं। सरकारी मुसलमान खुद लिखते हैं, ये ऐसा कंटेंट अपना बयान करते हैं जिसकी वजह तो रंगीला रसूल किताब लिखी गई है इसी सहाफत तो या सीरत दी किताबां जो सरकारी मुसलमाना दे। ये जरा मुलाहिजा करो, सीरत हलबिया दे अंदर जिल्द 2 में दी अंदर सरकारी मुसलमान की फरमाते ने। ये एक नबी का किरदार बयान हो रहा है कि नबी प्लानिंग कर रहे अपने साथियों के नाल तजारती काफले लुटण दी।
मतलब है कि ये शराफत दिखाई जा रही है, ये सीरत दिखाई जा रही है, ये उस नबी का किरदार दिखाया जा रहा है जो पूरी दुनिया वास्ते रोल मॉडल है। ये सरकारी मुसलमान लिखन दे ने माशाल्लाह। की फरमाते ने सरकारी मुसलमान कि जी जब वो तजारती काफिला जिसके ताकुब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए, मतलब उस उन्होंने लुटने वास्ते हद हो गई है यार। कि मतलब एक नबी जड़ा वे अपने साथी ना तजारती काफिला लिखा भी एक तो होंगे ना कि कोई लश्कर आंडिया को लड़न वास्ते आ रहा है, चलो फिर भी कोई गल है। ये तजारती काफिला लुटन वास्ते जड़ा है वो कह रहे हैं कि जी आपको इतला मिली काफिला शाम से वापसी के लिए रवाना हो चुके। पहली दफा तो नहीं मिले हो, दूसरी दफा उहदे वास्ते तजारती काफिला आ रहा है जिसके पास उनका मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। बाकायदा लिखा हुआ है। ये कौन कह रहा है? सरकारी मुसलमानों के मुताबिक आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें उससे फायदा अता फरमाए। बस मनु ये पूछना में कि ए नबी इस तरह की लुटन की प्लानिंग कर सकता है? मेरी गल खत्म हुई जी। ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਹਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਿਲਦ 2 ਸਿਰਤ ਹਲਬੀਆ ਤੇ ਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜ਼ਿਆਰ ਸੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਫਾ ਜਿਲਦ 2 ਦਾ ਸਫਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 1 ਮਿੰਟ, ਸਫਾ 6 ਨੰਬਰ 6, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 6। ਅਗਰ ਮਤਬੂਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, एवे कुतुब खाना कासमी देवबंद यूपी इंडिया अदारा कासमिया जिल्द 2 किस्त शशम ये पुराना को एडिशन इना दा। बिल्कुल ठीक। बस हुण ना गुफ्तगू शुरू होएगी। 2 मिनट ज़ियारतुल तुहाडे कोल ने, तुहाडा टाइम शुरू मैं कर रहा जी। मुरब्बी साहब कोलों मैं पुछ रहा सी कि नबी जड़ा अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदा कि नबी खियानत नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये पैंदियां लैंदियां इन्होंने जो मरज़ियां दे काम है जो इन्होंने सिखाया इन्हों दी जमात ने कि मिर्जे गुलाम कादियानी दा जो भी करतूत सामने आवे तुसी पकड़ के अंबिया कराम ते हमला करना। जो भी करतूत मिर्जे दा दस्या जावे तुसी सीधा अंबिया कराम दी जात ते हमला करना, उन्हां ते उंगली चुकनी। यही मरज़ियां दा काम सारा दिन यही काम करते हैं। मिर्जे का जो करतूत विखा दो, इन्होंने पैगंबरां ते अल्लाह के नबियां ते जाके हमला करना। सवाल ये सी कि नबी खयानत नहीं कर सकता। जवाब यह है जी कि सीरत हलविया च लिखिया वा कि जी वो काफिला लुट्टण दे प्लैनिंग हो रही है। बई मैं ये सवाल किया सी तेरे को, अगर तेरे को कोई सबूत है इंज दा ते वो तू पेश कर दे। जे नहीं है सबूत मैं तेरे को दूजी बारी को नहीं पूछना। जे तेरे को इस चीज़ का कोई सबूत आ कि नौज बिल्ला किसी पैगंबर ने किसी की अमानत च कोई खयानत की आ तो वह सबूत पेश कर दे। जे तू इस गल ते बहस करनी है, ये करनी है गुफ्तगू, ए काफिले वाला की मामला सी ते ये कर ला, उधरों हाथ खड़े कर दे कि भाई मैं मिर्जे गुलाम कादियानी नूं इस म्यार ते सच्चा नहीं साबित कर सकता क्योंकि उसकी खयानत पकड़ी गई है। तो ये गुफ्तगू कर लें। तो जे नहीं मौजू ते ही गुफ्तगू करनी है जेड़े तेरे नाल छेड़िया वा तो फिर सबूत हैगा तो वह लै, नहीं तो मैं अगली टर्न दे विच मिर्जे गुलाम कादियानी दी खयानत तेनों विखाना वा तो फिर मैनूं दस दें भी अल्लाह ताला ते फरमांदा कि नबी खायन नहीं हो सकता, नबी खयानत नहीं कर सकता। तो मिर्जा खयानत करके किंज नबी हो गया? तो वह भी मेरा इल्जाम नहीं, मिर्जे का अपना करार, अपने मूँह ने करार किया कि मैं खयानत की। जवाब दे दो। हुण तुसीं गल किहड़ी ते करनी है? तो जे खयानत ते गल करनी, कोई सबूत कोई जवाब है तो दिओ। इधर उधर जे जाना तो फिर हाथ खड़े कर दें कि मैं होर किसी टॉपिक ते गल नहीं करनी, मैं इहदे ते गल करनी, फिर उस ते गल कर लांगे जी। ए तुहाडा टाइम शुरू होया जनाब। जनाब मैं हवाला पेश करता है और मैं सिर्फ इत्ते गल करनी है, बाकी टाइम तुहानूं देने करो जी। ज़िया साहब आपका टाइम शुरू हुआ। अच्छा तो सवाल की पूछा सी आन के कि नबी का की किरदार होना चाहिए, की म्यार होना चाहिए। तो मैं असी तेन कुरान पाक चो आयत पढ़ के दसी कि अल्लाह ताला फरमांदा कि नबी खयानत नहीं करता। ऐ तू कबूल कर रहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खयानत उन्हें की, लिहाजा वो नबी नहीं सी? ऐ कबूल कर ला, फिर दूसरे टॉपिक ते कर दें गल। दियो जवाब जी। आपका टाइम फुरकान साहब शुरू हुआ। जनाब मैं सब दोस्तों बराड़ च हवाला पढ़ के सुनाया, किताब नंबर भी इन्होंने जल्द भी पूछी, सफ़ा नंबर भी पूछा, सारा कुछ पूछा, दस दिता गया इन्होंने। मैं सिर्फ इसी ते गल करांगा और मैं अपना सवाल रखता सी कि की नबी चोरी की प्लानिंग, लुटमार की प्लानिंग कर सकते, अपने दोस्तों नाल ताकुब कर सकते तजारती माल वास्ते। बाद की गल मिले ना मिले, नीयत सी मतलब लुटन की सरकारी मुसलमानों के मुताबिक। और मैं इसी हवाले नूं जड़ा वे ज़िया रसूल साहब के सामने रखदा इत्ते गल करना। मेरा टाइम मैं उन्हें टाइम देना अपना।
ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਚूंकि ਉਹਨੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਟਾਪਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਐਸੇ ਟਾਪਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ कर ला या सबूत मांग ला आ जा जी जनाब फुरकान साहब आपका टाइम शुरू करने से पहले अर्ज कर दूं कि वो किताब मेरे सामने खुली हुई है उसके अंदर सफ़ा 6 के ऊपर जिल्द 2 सफ़ा 6 के ऊपर कोई भी नहीं है कि तिजारती काफिला लूटने की गरज से सफ़र किया था। जी आप बात करें फुरकान साहब। जनाब ज़िया रसूल कह दे कि एक नबी जड़ा वे सरकारी मुसलमानों के मुताबिक लुट मार की प्लानिंग कर सकता है तिजारती काफिले लुट सकता है ते बाद चो मैं भी कह दूंगा जरा हिम्मत करे ना। ये सफ़ा मैं ये दिखा दूं ज़िया रसूल ये सफ़ा है ये देखें जी ये सीरत हलबिया कुतुब खाना कासमी जिल्द 2 सफ़ा 6 जो इन्होंने बताया था इस पूरे सफ़े के ऊपर कोई लुटमार की ये बात नहीं ये कादियानी मुरब्बी साहब जो झूठ बोल रहे हैं और बुहतान लगा रहे हैं आपके सामने। जी ज़िया साहब आपकी बात शुरू हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुरब्बी साहब मैं तो पूछ रहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या तो हथ खड़े कर दे कि मैं उन्होंने नबी नहीं मानता या वैसे कह दे कि भाई मैं उन्होंने मानता ही नहीं मेरा कोई तलक नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ तेरी जान छुट जाएगी या फिर मिर्जे कादियानी दी खियानत सामने आने तो बाद क्या तू इस चीज़ का इकरार करदा कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी नहीं सी इस गल का जवाब दे तेरा झूठ तो शाह साहब ने उंज ही दस दिता कि इत्थे तो गल ही कोई नहीं लिखी हुई। बोलो जी फुरकान साहब मेहरबानी करें ज़िया साहब जो आपसे पूछ रहे हैं वो आप मुतालबा पूरा करें और जो आप बात कर रहे थे उसका हवाला भी हमने आपको दिखा दिया। आप झूठ बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमने आपको उसका सबूत भी दिखा दिया। अब आपका टाइम शुरू हुआ फुरकान साहब। जी मौलवी साहब असल च तुहाडा प्रॉब्लम ये वे कि तुसी जड़ा है ना ये तुहाडी पुरानी वारदात है डिफरेंट एडिशन दिखानी जड़े एडिशन मेरे कोल है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ज़िया रसूल साहब ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਔਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਭਲੇ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। गल खत्म। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पहले सारी जिंदगी एक मिनट ये देख लें ये रेख्ता वेबसाइट के ऊपर ये सिर्फ एक ही एडिशन रखा हुआ है और ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये कोई एडिशन और है ही नहीं। कुतुब खाना कासमी देवबंद यूपी इंडिया ठीक है। ये देखिए मैं आगे जाता हूँ ये आगे जाता हूँ ये आगे जाता हूँ ये सफ़ा 6 आ गया है ये गौर ये मैदान साबित कर दें नहीं तो कहें कि मैंने झूठ बोला है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरह। मिर्ज़ा कादियानी भी दज्जाल फ्रडिया था झूठ बोलते गुजरी उसकी पूरी जिंदगी बुहतान लगाते गुजरी नहीं तो आप साबित कर दें। जी ज़िया साहब आपकी बात करें। हाँ जी मिर्ज़ई साहब मिर्ज़े वाली कार तुसी भी झूठ बोलना शुरू कर दिता आंदे ही या झूठ तेरा आसरा ते नाले ये साडा टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक साडा है सी कि नबी खियानत कर सकदा या नहीं कर सकदा। मिर्जे गुलाम कादियानी ने की खियानत अमानत च मेरा तेरे को ऐ सवाल आ कि इंज ही मन्नेगा या सबूत देने तो बाद मन्नेगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी ज़िया साहब आप सबूत दें खाइन सी नबी नहीं सी आप सबूत दें अपना टाइम 2 मिनट पूरे करें सबूत देने शुरू करें। ठीक है जी मैं जरा कढ़ लवा हवाला जी एक मिनट क्योंकि इन्होंने भी सबूत दिया है वो अगरचे गलत निकला है लेकिन आप भी सबूत से बात करें। आपका टाइम अभी जारी है। जी सर जी मैंने लैपटॉप को जा लेने दो जी बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
جب تک یہ ثبوت نہیں لے کے آتے تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو انہوں نے ایڈیشن بتایا تھا کتب خانہ قاسمی دیوبند یو پی انڈیا سیرت حلبیہ اردو ما اضافات، یہ صرف ایک ایڈیشن رکھا ہے سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر، اور کوئی ایڈیشن یعنی یہ کتب خانہ قاسمی دیوبند والا، اور دوسرے پاکستان کے چھپے ہوئے نسخے تو موجود ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جو حوالہ دیا تھا وہی ہم نے نکال کے دکھایا ہے، اس کے اندر یہ بات بالکل نہیں لکھی ہوئی۔ تو ضیاء رسول بھائی وہ لیپ ٹاپ کے اندر وہ پٹاری رکھی ہوئی ہے، ابھی کھلے گی پٹاری تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جو بھی بات کریں فریقین ثبوت سے اور دلیل سے بات کریں، اور پھر اس کے اوپر جیرا ہو جائے گی، حوالہ جو دیا جائے گا اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے ہم بیٹھ کے۔ تو پیار محبت سے دونوں فریق گفتگو کر رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں۔ آج خوشخبری ملی ہے کہ ایک قادیانی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ دلائل کو دیکھ کے۔ جی ٹائم ختم ہوا جی، فرقان صاحب آپ کا شروع ہوا۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آواز آ رہی ہے، بول سکتی ہیں 2 منٹ۔ ہاں جی بالکل، یہ حوالہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ نے پتہ نہیں کون سا ایڈیشن کھولا ہے کیا ہے، میرے پاس یہ صفحہ نمبر 6 سیرت حلبیہ۔ جی کیمرہ آن کر کے نا وہ دکھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، سکرین ان کی بڑی کریں جی۔ اچھا ایک منٹ ادھر آئیے۔ ٹائم آپ کا جاری ہے جی۔ قادیانی مربی صاحب ٹائم آپ کا جاری ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس موجود ہے، وہ کدھر گیا؟ نہیں حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کو سکرین میں کیسے لے کے آنا ہے سامنے، تاکہ آپ کو بھی سامنے کیمرہ آن سمجھ کریں میں اور سامنے آ جائے گا، یہ کون سا مسئلہ؟ کیمرہ آن کرتے ہیں، آپ کی بھی زیارت آج کر لیتے ہیں۔ جی ٹائم ختم ہوا جی، ضیاء صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوا۔ ضیاء بھائی آپ کا ٹائم شروع کرو۔ میں جا رہا ہوں، میں باہر ہوں، یا تو مجھے 2-3 منٹ ٹائم دیں، یا پھر آپ وہ نکال کے دکھائیں ان کو۔ مکتوبات احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ خطوط ہیں جس میں اس نے اقرار کیا ہوا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے، یا مجھے 2-3 منٹ ٹائم۔ صفحہ آپ یاد ہے کوئی؟ یہ مکتوبات احمد اور احمدیہ آ گئی ہے، اور عامر بھائی اگر آپ کو حوالہ پتہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ اچھا میں بزی تھا، میں سینڈ کرتا ہوں، ابھی سینڈ کرتا ہوں، 1 سیکنڈ ہولڈ رکھیں۔ واٹس ایپ پہ کر دیں تو میں یہاں پہ آن کر دوں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی مولوی صاحب میرا ٹائم شروع ہو گیا تو کیمرہ آن کر کے پھر دکھا دوں میں، تاکہ آپ کا جھوٹ۔ ٹائم جاری ہے، آپ چپ رہیں۔ عامر بھائی شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ 1 سیکنڈ میں مائک میوٹ کر لیں، میں بھیج رہا ہوں آپ کو واٹس ایپ۔ جی 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 بالکل۔ یہ لیں جی، یہ حوالہ آ گیا ہے، اور یہ لیں، یہ جناب مکتوبات احمد ہے،
اور صفحہ 305 ہے، جلد اول ہے۔ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچہ ہے جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے، اور اسی خرچ نے طبع کتاب میں دقتیں ڈالیں اور انبار قرضہ کا سر پر ہو گیا۔ اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے، مگر یہ مہمانداری محض للہ ہے، اور اس میں بھی بارہا تواضع اور اکرام ضعیف کے لیے حکم ہوا ہے، نہ تخفیف مصارف کے لیے۔ 3 سال کے عرصہ میں شاید 40,000 سے بھی کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، اور جہاں تک طاقت تھی حسب توفیق خدا داد ان کی خدمت کی گئی۔ سو بظاہر یہ نہایت درجہ کا اسراف معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو اپنے افعال میں مصالح ہیں، اور میں اس کے حکم اور امر کا پیرو ہوں، اور کسی دوسری کمیٹی یا جماعت کی پیروی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس کے کاروبار میں کچھ دخل دے سکتا ہے۔ اگلا حوالہ یہ ایک ہی حوالہ یہ مجھے سینڈ کیا جی۔ اب آپ فرقان صاحب بات کر سکتے۔ فرقان صاحب آپ کا ٹائم میں شروع کر رہا ہوں۔ ہاں جی مولوی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز ہے جی بولیں۔ ہاں ذرا دیکھیں، یہ جو میں نے کیمرہ آن کیا ہے تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے، جو آپ نے پہلے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ بریلوی جو تھا ضیاء رسول وہ تو بھاگ گیا، لگا گیا آپ کی ڈیوٹی ابھی، تو میں ذرا آپ کو وہ سیرت حلبیہ سے وہ حوالہ بھی دکھا دوں جو آپ نے جھوٹ باندھا مجھ پر کہ جی وہ ایسا حوالہ ہے یہ حوالہ بھی شو کر دیں مفتی صاحب جو میں نے اب بھیجا ہے۔ سوری ہاں جی یہ ذرا دیکھیں، میرا کیمرہ آن ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ جی وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کا کیمرہ آن ہے۔ ہاں یہ کون سی کتاب ہے، پڑھ کے سنائیں ذرا۔ ہاں جی یہ آپ ہی پڑھ کے سنائیں نا، کیمرہ تو آن۔ آپ بتائیں نا، یہ آپ نے تو بڑے ادھر مجھ پر الزام لگایا تھا جی میں نے غلط سکین دیا ہے، تو یہ دیکھیں ذرا، پڑھیں ذرا۔ یہ لکھا ہوا ہے فرقان فورس، یہ فرقان فورس لکھا ہوا ہے؟ جی جی جی۔ کیمرہ نہیں آن بھائی، آپ کا کیمرہ نہیں آن۔ یار باقی سب لوگ چپ رہے ہیں، آپ کرنے دیں، وہ پتہ ہے سب کو کیا آن ہے کیا نہیں، آپ خاموش رہیں بس۔ اس میں کیمرہ نہیں آن؟ جی کیمرہ آن ہے آپ کا، فرقان فورس لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا پڑھ کے سنائیں۔ اچھا کیمرہ نہیں آن، یہ کیسے چکر ہے؟ یا تو ایک منٹ یہ نہیں استعارہ کے رنگ میں ڈال لیں نا، بیچ میں استعارہ کا رنگ ڈال لیں، استعارہ کے رنگ میں کیمرہ آن ہے۔ اچھا یہاں سے تو یہ دکھا رہا ہے کہ آن ہے۔ ہاں ہاں وہ استعارہ کا رنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ دکھاتا کچھ ہو رہا ہوتا کچھ اور ہے۔ ایک منٹ میں اس کو پھر دیکھتا ہوں کس طرح نہیں آن یہ۔ اب دیکھیں جی بہترین، اب صحیح ہو گیا، اب ذلی بروزی ہوا ہے جی۔ پڑھوں کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہے؟ فرقان فورس۔ ارے یار کیمرہ نہیں چل رہا، پھر کیمرہ نہیں چل رہا بھائی۔ نہیں یہی تو مسئلے ہیں نا، استعارہ کے رنگ کے بعد جب چھلانگ لگائے نا ذلی بروزی پر تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک منٹ، لو تھوڑیاں چھلانگاں مارن دے چکر چ نا ٹائم وادو ہو گیا ہے، تے 2.25 منٹ تمہیں میں دیتے ہیں۔ چلو جی ٹائم شروع کر رہا ہوں، ضیاء رسول بولیں گے آپ کہ میں وہ حوالہ سنا دوں؟ سر جی حوالہ سنا دیں۔ جی حوالہ میں سنا دیتا ہوں، یہ لیں جی، یہ لیں، یہ استعارہ کے رنگ میں یا ذلی برودی نہیں ہے، بالکل اصلی ہے، حقیقی۔ اچھا مکتوبات احمد صفحہ 307 جلد اول ہے، مکتوب نمبر 3 ہے۔ شاید انہی الفاظ کو آپ نے کلمہ رنجو خفگی سمجھا ہوگا، مگر حاشا و کلا میرا وہ منشا نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔ میں پھر بعد اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ اخراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں آپ ہی ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے۔ اس قصور کا خود معترف ہوں۔ یہ لو جی اعتراف کا آ گیا جی مرزا صاحب کا، کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا ہے۔ چلو وہ کتاب کی قیمت میں جو کچھ مد میں آتا رہا وہ خرچ کرتے رہے ہیں،
मगर ये बात कि खुदा ताला के नजदीक मेरे वो मुसारफ किस रंग, ये देखे रंग रंग तेरे रंग 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 में है, और नुक्ता चीनियों की नजर में किसी रंग में, आहा वाह बल्ले ओ बल्ले। इसमें बहस करना नहीं चाहता क्योंकि गुजरी हुई बात को तूल देना कुछ फायदा नहीं, और मेरी राय नाकिस है, और आपका इस फिक्र में पढ़ना माला यालजिम है। एलो जी, तज़किरा एडिशन चहारम सफ़ा 199 और अल हकम, ये नीचे भी कुछ हवाला जात दिए हुए हैं, पढ़ लें जी। एलो जी, साबित हो गया जी। मिर्जा साहब किताबां दे पैसे ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੇ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਟੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਥਿਕੜੇ ਲੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हाँ जी, हुण देखो जरा मेरी आ रही है तस्वीर दी? हाँ जी जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। ए गल हुई जी, सुनावा पढ़ के आइए। हाँ जी हाँ जी। या मेरे कैमरे की सेटिंग लगता खराब हो गई है। नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं हुई। अच्छा चलो खैर, तुहाडे कोल हवाला ते मौजूद है ना सिर ते हलबिया दा, ते उस रसूल साहब नूं दो जिन्हां दी वारी है। सुना दित्ता तुहानूं, ओहदे च कोई नहीं है रसूल। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਖੈਰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸੂਲ ਨਾ ਕਰਾਓ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी, आई एम प्रेजेंट। मैं गलत तो नहीं बोल गया यार, इंग्लिश कमजोर है मेरी। हाँ जी मौलवी साहब, किधर गए रसूल साहब? शाह साहब गल कर रहे हैं मेरी जगह बैठे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਕਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੇ, ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਆਨਤ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਲੱਗ ਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਬੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ। ਆ ਬੋਲ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਟੱਪ ਗਏ ਹੋ ਅੱਗੇ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਲੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਖਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ MZ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਸ ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੂੰ ਇੰਜ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਓ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ਵਜਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤਕਰੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ, ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ जो फिरके के लोग हैं वो अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 दे उत्ते वो किधर गए तुहाडे दलाइल ते इलम और मार्फत में कमाल? कड्डो ना कमालात कड के बहाओ। तुहाडियां ते दीवारां डिगदियां ने पईयां हैं, बुनियादां तुहाडियां खोखलियां हो गईयां कादियानियों। कड्डो दलाइल, किहड़े जे दलाइल? ਉਹ ਲਿਆਓ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਛੜੀ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ओ जी मिर्जा हज़रत ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। ते ओ मिर्जा कादियानी जेड़ा ज़नाकारियां करदा रहा वो किधर जाना है भाई? है पूरी जिंदगी ज़नाकारियां करदा रहा, शराबा पींदा रहा है, वो शराबी सी एक नंबर दा, जानी सी एक नंबर दा, वो किधर गया भाई? हाँ जी, और रंडीबाजी करदा रहा है, तुहाडियां मावां नूं केले देंदा रहा है बिस्तर दे उत्ते, ते ओ किधर गए भाई? इंशाअल्लाह एक बरेलवी मौलवी ते दौड़ गया, ज़िया रसूल ला गया पीछे ड्यूटी मुफ्ती साहब दी कि भी तुसी आ जाओ अगे, मेरे को काम जोर है। मैं उसी हवाले दे उत्ते हां इंशाअल्लाह ताला। इस सरकारी मुसलमान लिखते ने माशाअल्लाह नबी प्लानिंग करन दिया काफिल लुटण दी। मतलब कि नबी वो हुंदा वे सरकारी मुसलमानों के मुताबिक जो काफिल लुटदा जाके साथियां नूं एक जत्था तैयार करदा है, उन्होंने पता चलदा है कि जी काफिला आण दिया वे, तजारती काफिला। ये भी नाल मेंशन है कि तजारती काफिला वे, उन्हां दे नाल कोई गार्ड्स नहीं, उन्हां दे नाल कोई असला नहीं, कोई फौज नहीं, एक तजारती काफिला वे। और सरकारी मुसलमान कहंदे ने कि जत्था बना के चले ने कि अल्लाह ताला भी हेल्प करेगा, वो तुहाडी अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, वो काफी लुटन चलिए। गल जिथों शुरू हुई सी वो आमर नजीर भाभी कह के गया कि जी नबी खाइन नहीं होंदा। मैं उन्हें कहा भी तड़े तक करदा भाई, लेकिन नबी तक काफी लुटन जान दिया। ड्यूटी लाई जी ज़िया रसूल दी कि जी ज़िया रसूल करेगा डिबेट 1 to 1। ज़िया रसूल साहब दे पर जल गए, वो साइड ते हो गए, अगे करता मुफ्ती साहब नूं। मुफ्ती साहब ने कोई 5-10 मिनट तकरीर की खुतबे दी, पता नहीं किहड़े गल्लां किहड़े इल्जामात लगाए। वो ये सारे इल्जामात सरकारी मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी लाए हुए ने, सारे वही इल्जामात। मैं बहरहाल अपने मौकफ ते अपनी गल ते उस किताब के हवाले ते मैं कायम हाँ जिस सरकारी मुसलमान लिखते हैं कि नबी जत्था बना करके लोग अपने नाल ले जाके काफिल लुटन जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, ए नबी दा किरदार है सरकारी मुसलमान दे मुताबिक। दिता तो टाइम लियाओ, ज़िया रसूल नूं फड़ के लियाओ जी। टाइम शुरू हो गया, मेरा टाइम शुरू हो गया। हाँ जी, मार लो गप्पां जिन्नियां मारनियां जे, कोई गल नहीं। फिर की होया? टाइम ताड़ा नहीं, ज़िया रसूल नाल गल होनी, लियाओ नूं फड़ के लिया, ओ दौड़ गया, ओ ज़िया रसूल नट गया, दौड़ गया, ओनू लेके आना जिन्ना गल होनी सी। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो जी, ज़िया रसूल नूं फड़ के लेके जिन्ना गल होनी सी ओनू लेके आ फड़ के। चुप करो जी, चुप करो जी। ए अल फजल अखबार है 31 अगस्त 1938 दा शुमारा, सफा नंबर 6। हेलो जी, कादियानी लोरी जड़ा वे ओ लिखदा है पिया खत। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार वलीउल्लाह थे, और वलीउल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर इन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है हमें हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है, यानी बशीरुद्दीन महमूद खलीफा जानी के ऊपर, क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। ओए जानियों, ओए जानियों, ओ पहले मिर्जा कादियानी ने एक शरीफ इंसान ते साबित करो, अगलियां गल्लां बाद चु करांगे असी। सीरत अलबिया का जिहड़ा हवाला देंदे पे झूठ,
गप मारी है तुसा झूठ बोलिया है और सबो शतम की है तुसी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते असी ते तुहानू हवाले वहाने पे साडा दिता है हवाला गलत होए जिहड़ी चोर दी सजा ओ साडी सजा। और मिर्जा कादियानी शराबी सी जानी सी ओनू करो साबित कि एक शरीफ इंसान सी पहले एक शरीफ इंसान ते साबित कर लो। हाँ जी नोट मंगवा रहे हैं लोगों के कोलों हाँ जी वो कहता जी टैक्स बचाने वास्ते अद्धा नोट एक खत दे विच पा के भेज दे ते फिर दूजे खत दे विच अद्धा नोट पा के भेज दें। और टैक्स चोर और तुहाडा मिर्जा कादियानी चोर सी ठग सी 50 किताबां लिखण दा वादा कीता ते 25 सालां च छोटे छोटे 5 रसाले लिख के आंदा 5 और 50 दे विच सिफर दा ही फर्क है। करोड़ों रुपया खा गया मिर्जा कादियानी चोर मिर्जा कादियानी ठग। मेरा टाइम खत्म होया जी। जी बोलो जी। जी जनाब, सब दोस्तों ने देखा कि ज़िया रसूल साहब जिन्होंने डिबेट शुरू की वो तो बेचारे भाग गए, ड्यूटी लगा दी मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब जो मैंने हवाला पेश किया उस पर बात नहीं कर सके। जो हवाला मैंने सीरत हलबिया का पेश किया जिसमें सरकारी मुसलमानों के मुताबिक का तजारती काफिला लूटने के लिए अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र नबाशिद ये नबी का किरदार है जो सरकारी मुसलमान बयान कर रहे हैं। बात शुरू हुई थी खाइन पर। मैंने इनसे कहा कि भाई आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है कि नबी काफिले लूटने जा रहा है। इन्होंने कहा जी वो तो हवाला है ही नहीं। तो मैंने इनको सीरत हलबिया में से पढ़कर सुनाया कि सरकारी मुसलमानों के मुताबिक जो नबी है वो काफिले लूटने जा रहा है और बाकायदा जत्था बना करके साथियों को जो है वो पुश कर रहा है उनको। वो बेचारे पता नहीं जाना चाहते थे नहीं जाना चाहते थे। एक बाकायदा प्लानिंग के साथ तजारती काफिला लूटने के लिए इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा। पहले तो ज़िया रसूल ने कहा जी मैं तो मानता नहीं जी, ये मैं नहीं मानता। भी तू कौन है, तू नहीं मानता? आपकी सीरत की किताबों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अब आप अपने बाबों से इनकार कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा आगे ना। या तो अपनी किताबें सारी जलाएं, आप जितनी भी अपनी किताबें हैं वो सब जला दें आप, ताकि लोग ना पढ़ सकें। अब ये तो लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैं अपने जो मैंने हवाला पेश किया मैं उस पर कायम हूँ। सरकारी मुसलमानों के मुताबिक अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नबी जो है वो लूट मार करता है, बकौल सरकारी मुसलमानों के काफिले लूटता है, तजारती काफिले लूटता है अपने साथियों के साथ। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वो ज़िया रसूल साहब जो भाग गए हैं उन्हें वापस लेकर आए, मेहरबानी करें। जी मेरा टाइम शुरू हुआ। अब ये देखिए सुनिए, और मिर्जा कादियानी जानी था वो मैंने अभी सबूत दे दिया। मिर्जा कादियानी बंगी था। और कादियान के लोग बंग पीते थे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफा 606। सिखों के जमाना में से इसके खिलाफ ये हाल था कि मस्जिदों में भंग घुटती थी और घोड़े बांधते थे, जिसका नमूना खुद यहाँ कादियान में मौजूद है और पंजाब के बड़े बड़े शहरों में इसके बकसरत नमूने मिलेंगे। और मिर्जा कादियानी बंगी था। अब आओ मैं तुम्हें मिर्जा कादियानी के शराबी होने के थोड़े थोड़े हवाले देता हूँ। खतूत इमाम बनाम गुलाम सफा 5 के ऊपर लिखा है, ये जनाब अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप शय खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टॉनिक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीद दें, मगर टॉनिक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। और टॉनिक वाइन शराबा पींदा सी मिर्जा कादियानी शराबी सी। जबकि अल्लाह पाक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 219 के अंदर फरमाता है कि ये जो शराब है और ये जुआ है हराम है, इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास, कुछ फायदे भी हैं लेकिन व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, एदा जड़ा नफा वे एदे गुना यानी इसका गुनाह बड़ा है, नफा कम है। अच्छा अब देखो, ये शराबी मिर्जा कादियानी और मुख्तलिफ किस्म की शराबें पीता था मिर्जा कादियानी। और ये जो कादी यार मोहम्मद है ये वो ही है। मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ गलत हरकत करता था, गलत काम किया करता था। उसके हवाले अगर चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा, पूछना मुझसे, तलब करना, हवाले दे दूंगा आपको। रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था मिर्जा गुलाम कादियानी। 10 महीने का अमल हो गया मिर्जा कादियानी को और मिर्जा कादियानी को उसकी मकत के अंदर से भी 16 दिन तक खून आता रहा रजूलियत की ताकत का इजहार करवाने की वजह से। मेरा टाइम खत्म हुआ। जी मौलवी साहब आप तो गुस्सा हो गए, जज्बाती हो गए। थोड़ा अपने ऐसा करें, अकेले ना हो, 3-4 दोस्तों के साथ रहें ताकि आप अपने आप को कुछ कर न लें।
تو میں ایک ہی حوالہ پیش کیا اور انشاءاللہ تعالی پوری براڈ میں اس پر قائم ہوں، اسی حوالے پر میں بات کروں گا۔ سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے وہ نہ ملا، یعنی کہ وہ تجارتی قافلہ آگے نکل گیا ہوگا، اب اس کا واپسی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ مطلب ایک تو ہونا کہ غلطی سے چلو جی بندہ بعد میں پچھتا لیتا ہے کہ نہیں جی واپس چلتے ہیں سرکاری مسلمانوں کے مطابق، استغفر اللہ نعوذ باللہ، باقاعدہ یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ قافلہ جو ہاتھ سے تجارتی قافلہ نکل گیا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کو لوٹنے کے لیے، اب اس کی واپسی کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس میں سے لازمی کچھ دوستوں نے کہا ہوگا کہ نہیں بھائی اب چھوڑیں، اب چلیں گھروں کو، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ قافلہ جو ہے اطلاع ملی کہ وہ قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے فرمایا یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کا مال و دولت ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ سرکاری مسلمانوں یہ انبیاء کا یہ کردار بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ نبی کا کردار ہے کہ وہ اپنا ایک جتھا بناتا ہے، دوستوں کو کہتا ہے کہ تجارتی قافلہ آ رہا جی، گھبرانا نہیں، قائم رہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ سرکاری مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے جو ہے وہ رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی ہے، ستیارتھ پرکاش لکھی گئی ہے، ان کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، میں تو صرف شروع سے ایک ہی حوالہ پیش کیا اور میں اسی پر قائم رہوں گا کہ سرکاری مسلمانوں کے مطابق نبی جو ہے وہ قافلے لوٹتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ ٹائم آپ کو دیا جی جناب، ٹائم شروع ہو گیا میرا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا غلام قادیانی کی رنڈی بازی سنیے، اور رنڈی باز تھا مرزا غلام قادیانی، خبیث رنڈی باز تھا، ایک نمبر کا مرزا قادیانی۔ اب یہ دیکھیے جناب، ذکر خبیث کتاب ہے مفتی صادق کی، اور صفحہ نمبر 38 ہے، اور عنوان بند ہے انو کچھ ویندا ہے، انو کچھ ویندا ہے۔ اور مرزا قادیانی کے سامنے یہ جو لڑکی تھی ننگی ہو جاتی ہے، ننگی ہو جاتی ہے، برہنہ ہو جاتی ہے، برہنہ ہو جاتی ہے۔ اور جناب یہاں پر ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں کہ سیرت المہدی صفحہ 722 کے اوپر قادیانیوں کی حدیث نمبر 780 ہے جناب۔ ایک لڑکی مرزا قادیانی کی، وہ جو بانو رضائی والی ہے، وہ ٹانگیں دباتی ہے۔ اور جناب یہاں برکت بی بی کا بھی سن لیں، سیرت المہدی صفحہ 214 ہے۔ اور جناب وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی ہے، ساتھ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے نا رحم دانی کے اندر بڑی درد ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ تو مرزا قادیانی اس کو کیلے دے رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اور یہ کیلے لے رہی ہوتی ہے کہ یہ تبرک ہے، با برکت کیلے ہیں، گھر جا کے لوں گی۔ تو مرزا قادیانی وہی پر نہ منگوا کے 10 قطرے ڈال کے بتاتا ہے اس طریقے سے تو نے یہ قطرے لینے ہیں۔ اب دیکھو مرزا قادیانی کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور اس کی خدمت میں رہتی ہے ڈاکٹرانی، تو مرزا قادیانی اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ جب وہ مرتی ہے وہ لڑکی، تو اس کا دوپٹہ لے کے مرزا قادیانی ایک وہاں کمرے کے اوپر بندوا دیتا ہے کہ آتے جاتے جو ہے نا دل پشوری کرتے رہیں گے، ہاں جی، اور بیت الدعا کی کھڑکی کے اوپر اس نے اس کا دوپٹہ بندوا دیا، ہاں جی۔ اے کیڑا دعا دا طریقہ ہے جی؟ سیرت المہدی صفحہ 631 ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 688 ہے۔ وہ بتاؤ بھی تو صحیح ہے کہ زانی شرابی آدمی ہے اور اس کو تم نے مسیح موعود بنایا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی خنزیر کو پہلے ایک انسان تو ثابت کر لو، اگلی باتیں بعد میں کریں گے۔ مرزے کو پہلے انسان ثابت کرو اور اگلی باتیں پھر ہم کریں گے۔ چلو جی ٹائم شروع ہوا۔ دوڑ گئے ہو؟ جب نکل گئی ہے ہونا؟ لو وہ بندہ ہی دوڑ گیا، لو آئینہ دکھایا تو دوڑ گئے ہو۔ اصل فرقان فوج دا بندہ ہی نہ تا نس گیا ہے، انہوں کا کام ہی جواب نہیں نہ ہوتا، اتھی گھس جاتے ہیں جتنے مرزے نے آخیا۔ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر وہاں ہی گھس جاتے ہیں۔ پیرا دے پار پائی دا ہوندا ہے، قادیانیوں مر جو تسی ہوئے۔ جیو جی شاہ جی زندہ باد، نسا چڑھا جی۔ خبیث کے بچے، سیرت حلبیہ دا حوالہ پیش کر رہے ہیں، خبیث کے بچے، ادھر لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں تجھے ہٹا نہیں دیا، تو خود بھاگا، پھر آ جا اوپر آ جا۔
बंदा बेशरम होना चाहिए बस। बेशरम, बेशर्मी दी इंतहा है। जाके नीचे लिख रहा है कि मुझे हटा दिया है। अब ड्रामेबाजियां खबीस के बच्चे ना। नहीं, किसी बंदे ने नहीं इसको हटाया, बिल्कुल नहीं हटाया, नहीं किया। ऊपर आने तो कॉल डाले। मैं आपको एक मिनट सब खामोश रहे, मैं आपको लेता हूँ यार। एक जगह खाली करें, एक बंदे की जगह खाली करें, इसको मैं लेता हूं। जगह खाली है जी, जगह खाली है। ऊपर आओ जी, कॉल डालो। आपको इनवाइट कर दिया मैंने, आ जाए भाई। ये वो फुरकान फोर्स है जो इनके 2 नंबर खलीफा ने बनाई थी ना उस रबवा में आके, आपको याद होगा 1950 के बाद। ये उस फुरकान फोर्स का बंदा है, ठीक है, उसका तल्लुक उस फुरकान फोर्स से है। लेकिन बात यह है भाई फुरकान फोर्स साहब, आपने यहाँ बराड में एंटर होके सवाल ये किया था, तब मैं ड्राइव कर रहा था, मैं रुका हुआ हूँ। आपने कहा था कि भाई नबी जो होता है उसका कोई किरदार, कोई मयार आप लोगों के पास है कि अगर कोई बंदा नबूवत का दावा करे तो उसको परख लें। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ के कहा था कि कुरान में लिखा हुआ है मा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, नबी खाइन नहीं हुआ करता। अगर किसी बंदे ने खयानत की है और उसको खुद एतराफ है कि मैंने खयानत की है, इल्ज़ाम नहीं, किसी का इल्ज़ाम नहीं, खुद वो मोतरिफ है इस कसूर का कि मैंने खयानत की है, तो फिर उसका नबूवत का दावा झूठा है। मैंने जरा जाना है तो भागने लगा भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं फारिग हो गया, कोई गल नहीं, मैं निमट लूंगा जी। फुरकान फोर्स साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई बंदा खुद ये तस्लीम कर रहा है कि मैं इस कसूर का मोतरिफ हूँ कि मैंने खयानत की है, तो उसका नबूवत का दावा बातिल है, वो झूठा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया था कि मेरे बाद झूठे मुदय्या ने नबूवत इस उम्मत में आएंगे, खुद को नबी कहेंगे, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये जो मुदय्या ने नबूवत बाद में पैदा हुए, आपने पूछा कि इनमें से किसी को अगर परखना हो तो एक मयार पहला आपके सामने पेश किया गया। जवाब आपने ये दिया कि सीरत हलबिया में ये बात लिखी हुई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अपने साथियों को कि कुरैश का काफिला शाम से आ रहा है, मक्का, क्योंकि मक्का वाले जो काफिले हैं वो मदीना से गुजर के जाते थे, तो इनको रोकना है। ज़िया भाई आपसे बार बार पूछ रहे थे कोई काफिला लूटा नबी पाक ने? नहीं, किताब में लिखा हुआ है। कोई लूटा नबी पाक ने? नहीं, किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा आ जाओ लूटें इसको। भाई अगर किताब में ये लिखा होगा भी बगैर सनद के, तो हमारे लिए वो किताब हुज्जत नहीं। पहली बात तो ये है। ज़िया भाई ने भी आपको कहा तमाम मुसलमानों का ये मौक़िफ़ है कि हमारी बुनियाद कुरान और हदीस है, हमारे मुसल्लमात कुरान और हदीस। अगर सही हदीस से ये बात दिखा दो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिला लूटा या काफिला लूटने के लिए अपने साथियों को कहा कि अहले कुरैश का काफिला लूटें, हम उसको तस्लीम कर लेंगे। अगर किसी सीरत की किताब में इस तरह की कोई बात लिखी हुई है, पता नहीं ये तर्जमे की गलती है, पता नहीं उसने गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है, ये बेबुनियाद बात है, इसको हम कबूल नहीं करते। आप भी कहें कि आपके मिर्जा साहब की जो तहरीर आपकी आंखों के सामने रखी गई, आप उसको कबूल नहीं करते। वो खुद अपने मिर्जा साहब ने अपने हाथ से लिखी है, वो किसी की लिखी हुई नहीं है। वो जो जिक्र हबीब की इबारत या वो काजी यार की जो इबारत है कुर्बानी वाली, वो नहीं आपके सामने पेश की। अगर किसी और की इबारत आपके सामने पेश करें तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह तुम सीरत हलबिया की इबारत कबूल नहीं कर रहे, मैं इसको कबूल नहीं करता, ठीक है ना। तो हमारे सामने भी वो दलील पेश करें जो हमें कबूल हो। आपके सामने जो दलील पेश की गई, आप कह दें मुझे नहीं कबूल, या कह दें कि हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि लोग पैसे दें किताब के लिए और बंदा जनाब वो खा जाए और कहे कि लोगों ने मुझे पैसे तो दिए थे किताब के लिए, वो मुझसे इधर उधर के कामों में लग गए हैं। ऐसा भी नबी हो सकता है। अब आपकी बारी है, बात करें जी। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। पहले तो वो मुफ्ती ज़िया रसूल साहब भागे, उसके बाद ये अपना मुफ्ती मुबशर साहब, पहले तो उन्होंने मुझे खुद रिमूव किया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और झूठ बोल दिया जी मैं चला गया, मैं यहाँ मौजूद था। पहली बात तो ये। अब उन्होंने आपकी ड्यूटी लगा दी है कि जी अब आप आ जाएं।
मैं उसी एक ही हवाले पर बात करूंगा जो मैंने पहले पेश किया, उसी पर मैं कायम हूँ। सरकारी मुसलमानों ने ये लिखा, आप माने ना माने, आपके बड़े लिख गए, अब आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप जब ये कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता, तुसी कल एक छोटे जे पता नहीं की कहना नहीं चाहिए बरले भाभी हो, तनु तो बरेलवी नहीं मानते, बाकी दूसरे मसलक वाले फिरके वाले नहीं मानते, तुसी अपनी गल करो। बाकी जिथे गल रह गई है सीरत हलबिया दी, ते ए सीरत दी किताबां च लिखिया होया, तुहाडे बुजुर्ग लिख गए ने, हुण इहनूं बर्दाश्त करो। तुहाडे बुजुर्ग की लिखदे ने, तुसी क्या कि नहीं जी उहनूं लुੱਟਮਾਰ नहीं सी करनी, कुछ नहीं सी करना। ये लिखदे ने कि जी तजारती काफिला नफा हासिल करने गया था, वो नफा कमा कर वापस इधर ही से होकर मक्के जाना है उसने। आखिर आपको इत्तला मिली कि वो काफिला शाम से वापसी के लिए रवाना हो चुका है। आपने मुसलमानों को बुलाया और उनसे फरमाया, ये कुरैश का तजारती काफिला आ रहा है जिसमें उनका मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। वापस कर देना हो सकता दोस्तों ना समझ आया होए। ये कुरैश का तजारती काफिला आ रहा है, इसमें इनका मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें इससे फायदा अता फरमाए। माशाअल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ए सरकारी मुसलमान ने जी ए लिख रहे ने कि नबी जड़ा वे वो लुट मार दी, अस्तगफुरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नकले कुफर ना बाशिद। ए प्लानिंग कर रहा जी लुटण दी काफिला। वो इदां दे देहातां दे अंदर रात नूं सेंच जा डाकू राज, उत्थे लोग जड़े ने रातां नूं डाकू जड़े ने जत्थे लैके हाईवेआं ते जड़े ने बसां रोकदे ने, उन्हां नूं पता चलदा कराची तो लाहौर बस आंदी, उह च ताजर मौजूद ने। वो तुसीं की किरदार बयान करन दे हो नबी दा? मतलब है कि तुसीं दुनिया नूं दिखा रहे हो। स्कैन दिखाएं, स्कैन दिखाएं। पहली भी और आ गया कोई बाकी बंदे ना बोले भाई, मेरी बारी है उस्ताद। ओ हेलो रॉयल मुगल साहब, चलो यार हद हो गई है। एक और आ गया भी बंदा। नहीं जो बोलेगा उसको नीचे उतार देना, ना कोई बोले। अब बात खत्म हो गई आपकी जी। फुरकान फूर साहब, गुजारिश ये है अगर तो आपने सिर्फ इस वजह से नबी पाक को गाली देनी है क्योंकि आपके मिर्ज़ा साहब की तहरीर आपकी आंखों के सामने रखी गई, जिसमें खुद आपके मिर्ज़ा साहब मान रहे हैं कि मैं इस कसूर का मोतरफ हूँ कि लोगों ने मुझे पैसे दिए थे 50 किताबें लिखने के लिए, मैं वो खा के डकार मार गया। मैं मानता हूँ कि मुझसे वो पैसे इधर उधर के कामों में लग गए, यानी मुझसे ये खयानत हो गई है। लोगों ने मेरे पास पैसे रखवाए थे किताब लिखने के लिए। ये है असल बात। हमने इसमें अगर कोई हेरा फेरी की है या ऐसी बेसनद बात की है जिसका कोई असल नहीं है, किसी की सुनी सुनाई बात सुना दी है, या कोई ऐसी किताब जैसे वो इस्लामी कुर्बानी किताब है काजी यार की, वो आप कहते हैं हम नहीं मानते। अगर इस तरह की कोई किताब का हवाला पेश किया है, आप कहते हैं कि हम इस किताब को ऑन नहीं करते, हम इस हवाले को तस्लीम नहीं करते, तो फिर आप बात पेश करते हैं हमारे सामने, वो पता नहीं उसमें भी लिखी भी हुई है या नहीं लिखी, अभी तक आपने वो स्कैन भी पेश नहीं किया। मुफ्ती साहब ने अलबत्ता वो किताब खोल के देखी है और उन्होंने स्कैन आपके सामने कैमरा खोल के दिखाया कि वहां पर ये बात लिखी नहीं। अगर लिखी भी हो, सीरत हलबिया मुझे पता है बहुत सारी लगव बातें भी लिखी हुई है, मैंने पढ़ी हुई है, अगर उसमें कोई इस तरह की लगव बात लिखी भी हो तो ये हुज्जत नहीं है। हुज्जत मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस है। सीरत की कुतब में कई बातें सही लिखी हुई हैं, कई गलत लिखी हुई हैं। जो भी बेसनद बात जिसकी कोई सनद नहीं है, वो अगर किसी ने बड़े से बड़े मुफस्सिर ने भी लिखी है, हमारा दिल करे हम उसको सही समझे तो कबूल कर लेंगे, अगर वो किसी हदीस से मुताबिकत रखती है, कुरान से मुताबिकत रखती है। अगर वो गलत है हम उसको कबूल नहीं करते, कुछ नहीं होता, हमारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं गिरने लगा। जो बात आपने पेश की है, पहली तो बात यह है कि स्कैन नहीं पेश किया। अगर स्कैन पेश करो और ये वाकईतन सीरत हलबिया में लिखी हुई हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं, फिर हमारे ऊपर कोई हरफ आएगा। आप भी कहो मैं मिर्जा कादियानी की बात को मुस्तरद करता हूं, ये झूठ लिखा है मिर्जा कादियानी ने। मिर्जा साहब को लोगों ने पैसे दिए थे 50 किताबें छापने के लिए, मिर्जा साहब ने लिख दी थी 50 किताबें। ये झूठ बोल गए मिर्जा साहब के मुझसे वो पैसे खर्च हो गए। कहो, आप तो इनकार कर नहीं सकते। तो बदले में सिर्फ एक अद्धी पिछद्दी इबारत जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, वो ला के आप पेश कर रहे हो। अब सुनने वाले सुन के फैसला कर लें कि इनकी दलील की कितनी अहमियत और हमने जो दलील पेश किया उसकी क्या अहमियत है। ये है जी
नबूवत का एक मयार, अगर कहें तो मैं और मयार भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। इस मयार पर तो आपने देख ही लिया है कि आपके मिर्जा साहब कहाँ तक पूरे उतरते हैं। खयानत करने वाला नबी नहीं हुआ करता। कुरान ने कहा मा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल, नबी खाइन नहीं होता। आपका मुंह बोला नबी खुद मोतरफ है कि मैंने खयानत की है। इसके बारे में कुछ फरमाए। माइक आपका है। नीचे से कौन बंदा ऊपर उठा रहा है? हाँ जी, बहुत से दोस्त ना जो उठाए हैं वो नीचे नए, से मॉडरेटर हजरात। हाँ जी, बहुत से दोस्त अभी जिन्होंने ब्रांच ज्वाइन किए नए आए हैं, उनको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले ज़िया रसूल खमीनी से बात हुई, वो भाग गया। उसके बाद जो है मुफ्ती मुबशर साहब आए, उनके हाथ में दिया गया भाग दौड़, फिर वो भागे। अब ये आमर नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तकरीर इन्होंने माशाल्लाह की है। मैंने इनके सामने सीरत हल्बिया का हवाला पेश किया, जिसमें एक तजारती काफिले को लूटने के लिए अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशिद सरकारी मुसलमानों के मुताबिक एक नबी, मतलब नबी खाइन नहीं होता, लेकिन सरकारी मुसलमानों के मुताबिक नबी लूटमार अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह करता है। और वो पूरा जत्था लेकर के, जिस तरह सिंध के डाकू जो हैं हाईवेज पर तजारती काफिले लूटते हैं, बसें लूटते हैं, ट्रेनें लूटते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के लिए जो बंदा रहमतुल लिल आलमीन है, जो बंदा हमारे लिए रोल मॉडल है सरकारी मुसलमानों के मुताबिक, वो काफिले अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह रोडों पर वो काफिले लूट रहे हैं साथियों के साथ। वाह। और ये वहाबी मौलवी साहब कहते हैं कि जी असी इस हवाले नहीं मानते क्योंकि असी जरा वे इदी को सनद नहीं हैगी। भाई तुहाडे बुजुर्गों ने लिखा है, या तो सारियां किताबें जला दो। ये सब किताबें आपको जलानी पड़ेंगी क्योंकि जो आपके बुजुर्गों ने लिख गए हैं, अब उनका आपको दिफा करना है, उससे नजर नहीं चुरानी आपने, अब इसका दिफा करें। अगर आपसे नहीं हो सकता, किसी और बड़े मौलवी को लेकर के आए जो इस पर बात कर सके। खाली ये कह देने से कि जी मैं इसे नहीं मानता या हम इसे नहीं मानते, ऐसे बात नहीं होगी। आपको इसका दिफा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो किस मकसद के लिए गए, ताकुब क्यों किया, तजारती माल में से क्या नफा हासिल करना चाहते थे, ये बताएं हमें। माइक आपको दिया। ये जनाब बाग हैं। जी मौलवी साहब, मैंने आपको दिया अपना टाइम। अच्छा, मेरा माइक म्यूट था, सॉरी, मैं बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है फुरकान फोर्स साहब, पहली बात तो ये है कि ये वर्किंग आवर्स हैं, मैं बिजी था, मैं अपनी जगह पर ज़िया रसूल भाई को माइक देकर गया था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने आपको बताया था, आपने खुद सुना है। ज़िया रसूल भाई भी बिजी हो गए, जाहिर है ये टाइम है काम का, मजदूरी का, लोग अपनी अपनी मेहनत मजदूरी करें। हमारा कोई ये पेशा तो नहीं है ना, हमारा कोई जरिया आमदन तो नहीं है, टिक टाक से कोई पैसे तो नहीं कमाने। अगर वो मसरूफियत की वजह से चले गए हैं, बंदा तो मौजूद है ना बात करने के लिए। तो इस तरह की पहली तो बात यह है कि ये ताने मेने अच्छी बात नहीं है कि फलां चला गया, फलां भाग गया, फलां आ गया, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जवाब दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि सीरत हल्बिया के हवाले को कबूल करो, जितनी भी बातें, जितने भी तुम्हारे बाबों ने, बुजुर्गों ने लिखी हैं, उनकी हर एक बात कबूल करो। कभी किसी मुसलमान ने यह दावा किया है आपके सामने कि 14 सदियों में जितनी भी किताबें मुसलमान उलमा की तरफ से या मुफस्सिरीन की तरफ से तफसीर या बातें लिखी गई हैं, उनके एक एक लफ्ज, एक एक हरफ को हम ऑन करते, कभी किसी ने कहा है? हमारी बार बार कहा जाता है कि हमारे मुसलमात हैं कुरान और हदीस। अगर किसी बड़े से बड़े बाबे की भी बात कुरान और हदीस से मुताबिकत नहीं रखती, हम उसको दीवार पे दे मारते हैं। भले किसी इमाम की बात हो, आलिम की बात हो, मुफस्सर की बात हो, मुजद्दिद की बात हो, मुहद्दिस की बात हो, उनकी अपनी बात की कोई अहमियत नहीं। बात चलेगी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, किताब और सुन्नत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नती। दो चीजें मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, इनको पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक है अल्लाह की किताब, एक है मेरे उसके नबी की सुन्नत। ये दो चीजें हैं, बाकी सारी चीजें इनके नीचे हैं। किसी बाबे की, किसी बुजुर्ग की सीरत हल्बिया हो या सीरत कोई और कोई नाम उसका हो, हमने देखना है अगर वो किताब और सुन्नत से मुताबिक बात रखती है, ठीक है, नहीं रखती
हम उसको नहीं ऑन करेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। हमने जो आपके सामने हवाला पेश किया है, क्या हमने कोई ऐसी बेसनद बात पेश की है, बेसनद कौल पेश किया है? हमने किसकी किताब से बात आपके सामने रखी है? या कुरान की आयत रखी है, या आपके मिर्जा साहब के अपने हाथ का एतराफ रखा है? कुरान कहता है मा कान लिनबिय्यिन अन यगुल, और मिर्जा कादियानी साहब कहते हैं मैं इस कसूर का मोतरफ हूँ कि लोगों ने मुझे पैसे दिए थे किताब छापने के लिए, वो मुझसे इधर उधर के कामों में खर्च हो गए। अब बताएं, नबी हो सकता है वो बंदा? नबूवत का दावा उसका मान लोगे जो कहता है कि मैंने तस्लीम किया कि मैंने अमानत में खयानत कर दी है, मैं तस्लीम करता हूँ। और कुरान कहता है कि नबी खाइन नहीं हो सकता। ये एक झूठी बात नहीं है, घड़ी हुई बात नहीं है, बेसनद कौल नहीं है, गलत तर्जमा नहीं है, बल्कि आपके मिर्जा साहब का अपना लिखा हुआ खत है। इस पर कुछ फरमाएं। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि क्या ऐसे बंदे को आप मानते हैं कि ये नबूवत का दावा कर सकता है, जो खुद मानता है कि मैंने पैसे खा लिए लोगों के? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप खुद कह रहे हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो उसवा हसना है दुनिया के लिए, और किसी बाबे ने इस तरह की बात लिख दी उनके बारे में, बकौल आपके सरकारी मुसलमानों ने बात ये लिख दी, तो बात में गलती है ना। आप ये कहें कि ये बात गलत है लिखी हुई, नबी रहमत की बात नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि ये उनकी बात नहीं हो सकती, बात में गलती है ना, नबी की जात में तो गलती नहीं है। हम जो आपको पेश कर रहे हैं वो आपके मुंह बोले नबी की जात की गलती है, इसका जवाब दें। वो खुद मोतरफ हैं कि मैंने खयानत की है कोई जवाब आपके पास? आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो तमाम दोस्त जो अभी अभी ब्रॉड पर तशरीफ लाए हैं उनको मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो बात शुरू हुई थी वो ज़िया रसूल खमीनी साहब से थी, पहले वो भागे, उसके बाद दूसरा नंबर पे मुफ्ती साहब मुबशर साहब अलमारूफ दुरुस्त करें। ज़िया रसूल अमीनी अपने अल्फाज खामोश रहें शार्प शूटर, कहने दें, खामोश रहें। अच्छा जी, मैं फिर से शुरू करता हूँ। ये दरमियान में एक दोस्त आ गए। सबसे पहले बात शुरू हुई ज़िया रसूल अमीनी साहब से, वो भागे। उसके बाद मुफ्ती मुबशर साहब को उन्होंने झंडा पकड़ाया कि जी आप आएंगे जरा इनसे बात। उसके बाद मुफ्ती मुबशर साहब को उन्होंने झंडा पकड़ाया कि जी आप आएंगे जरा इनसे बात। उसके बाद मुफ्ती मुबशर साहब, ओ भाई बात तो करने देना यार, बीच में आप क्यों लोग आ जाते हैं? मैं म्यूट हो जाता हूँ अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो। जी इजाजत है आमर नजीर साहब? जी, उनको मैंने नीचे उतार दिया है, अब जो भी बोलेगा उसको नीचे उतार दिया जाएगा, डोंट वरी। जी मेरा टाइम होता है शुरू? करें। अच्छा जी, तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बात ज़िया रसूल अमीनी साहब से स्टार्ट हुई, वो भागे। तो ये बहाने ही होते हैं ना कि जी मैं हूँ जा रहा, मैं कमते हैं। भाई आपने फिर क्यों तशरीफ लाए? आपको बात नहीं करनी थी ना जब आपको काम था। उसके बाद उन्होंने झंडा पकड़ाया जी मुफ्ती मुबशर साहब को, बरेलवी साहब को, वो भी तशरीफ ले गए। पहले तो उन्होंने बड़ा बहाना किया, पहले तो उन्होंने यकदम जो है मुझे पहले गिराया, यहाँ से नीचे किया, तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले ली और मैंने उनको लिखकर भी कहा कि मैं तो मौजूद हूँ। उन्होंने बड़ा रोला पाया जी नठ गया, मैं मौजूद था। खैर उसके बाद जाते हुए अब उन्होंने झंडा जो है वो आमर नज़ीर साहब को पकड़ाया है। मैंने एक ही स्कैन पेश किया सीरत हल्बिया से, जो कि सीरत की किताब है जो कि सरकारी मुसलमानों ने लिखी है। अब क्योंकि उसमें ये सारा लिखा है, अब ये उसे कबूल करने से इनकारी हैं, क्योंकि इनको पता है कि पकड़ाई हो गई है। बुजुर्ग इनके जो लिख गए हैं उसका भी दिफा तो कर नहीं सकते, अब उससे जान छुड़ानी है। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं उनकी सिर्फ खिदमत के लिए उनको मैं बताता चलूं कि मैंने सीरत हल्बिया की किताब में से एक हवाला पेश किया कि काफिला कुरैश की वापसी की इत्तला। उसमें बताया जा रहा है कि तजारती काफिला जिसके ताकुब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए थे वो ना मिला, क्योंकि वो निकल गया, पहले निकल गया, उसे खबर मिल गई होगी, वो निकल, अब उसकी वापसी का इंतजार हो रहा है। तो सरकारी मुसलमान लिखते हैं अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा उनको तसल्ली देते हैं कि अब आ रहा है काफिला वापस, माल के साथ आ रहा है। पहले तो इन लोगों ने कहा नहीं जी वो लूटा नहीं, उसके लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए गए थे, लेकिन यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि वो नफा कमा कर वापस इधर ही से होकर उसने मक्के जाना है। तो आपने कहा कि भाई जिसमें इनका मालो दौलत है, कुरैश का तजारती काफिला आ रहा है, इसमें मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। ये भी नहीं कि उसको रोकना है, प्यार मोहब्बत से समझाना है, उस पर हमला करने के लिए ये सरकारी मुसलमान लिख रहे हैं।
ये इनके बाबों ने लिखा है। अब ये अपने बाबों से जान छुड़ाते हैं, नहीं जी उनसे गलती हो गई, ये तो ऐसी बातें नहीं है, अहादीस में नहीं है, उसमें नहीं। भाई आपके बाबों ने सीरत की किताबें लिखी हुई हैं, आखिर ने सोच समझ के तहकीक करके लिखा होगा। अब आपको चाहिए कि इनका दिफा करें, क्योंकि जब ये बातें पढ़ते हैं तो फिर जो हिंदू लोग या ईसाई लोग या और जो एतराज करने वाले हैं वो कहते हैं कि जी सिंध के डाकू भी यही काम करते हैं, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। आप जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं, सरकारी मुसलमान, उनका ये किरदार बयान कर रहे हैं कि वो काफिले अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लूटते थे रोडों पर, रोड रस्तों पर, या मतलब जो तजारती काफिले थे। तो मैं इसका जवाब इनसे मांग रहा हूँ। ये कभी इधर निकल जाते, कभी, अब ये तीसरे मौलवी साहब है जो लगे हुए हैं, पहले तो 2 भाग गए हैं। अब आबा नजीर साहब आपकी बारी है, मैं माइक आपको देता हूँ। ठीक हो गया, बहुत बहुत मेहरबानी। 3 दफा जब से मैं आया हूँ 3 दफा आपने बात की है और तीनों ही दफा वही बात दोहराई है, कोई तब्दीली नहीं, अल्फाज में भी तब्दीली नहीं है। तो कोई नए बंदे यहाँ पर नहीं आ रहे, वही बंदे हैं जो काफ़ी देर से सुन रहे हैं। अब मैं आपको एक फिक्री बात पूछकर माइक आपके हवाले करने लगा हूँ। जो बात आप बार बार पेश कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि ये किताब की गलती है या ज़ात की गलती है? क्या आप मानते हैं कि ये नबी पाक की ज़ात में गलती पाई जाती थी माअज़ल्लाह, या ये किताब की गलती है जिसने लिखा? इसका जवाब दे दे माइक आपका। जी, इसका जवाब ये है कि सरकारी मुसलमानों के मुताबिक ये बात जो है, जिन्होंने तहकीक की है, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है, नकले कुफ्र कुफ्र बाशिद, उनके मुताबिक तो यही किरदार था, यही किरदार था जो लिखा हुआ है, जो सरकारी मुसलमानों के मुताबिक है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपके उलमा ने लिखा है, आपके बुजुर्गों ने लिखा है, माइक आपके हवाले। ठीक हो गया ना मोहतरम, मैंने अर्ज कर दिया कि जिसने ये लिखा है या तो उसके सामने जाकर पेश करें या उसके सामने जाकर पेश करें जो इसको ऑन करता और कहता है कि हाँ ऐसा ही नबी पाक ने किया था। मैं तो इसको कबूल नहीं करता। ये हो गई मेरी बात। अब आप मुख्तसर जवाब दें, वो जो खत आपके सामने मिर्जा साहब का पेश किया गया है उस पर आपका क्या जवाब है? जी आमन अजीज साहब, मैंने ये हवाला पेश किया, सरकारी मुसलमानों की ये किताब है जिसमें से हवाला आपको पेश किया गया, जिसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रोल मॉडल हैं, उनके बारे में ये किरदार जो है वो सरकारी मुसलमान लिखते हैं कि अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लूट मार, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशिद वो किया करते थे, बाकायदा जत्था बना करके हमला किया करते तजारती काफिलों पर। ये किरदार है, ये रोल मॉडल होता है। ये आप क्या किरदार बयान करना चाहते हैं पूरी दुनिया को? आप क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? माइक आपके हवाले। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछा है कि जो खत आपके सामने पेश किया गया उस पर आपका क्या कहना है? आप मेरे सवाल का जवाब दें कि जो शख्स हमारे लिए रोल मॉडल है, क्या वो लूटमार इस तरह सरकारी मुसलमानों के मुताबिक कर सकता है? क्या वो काफिले लूट सकता है? इसका जवाब मैंने दे दिया कि जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं वो इस तरह नहीं कर सकते। ये इबारत गलत है, इसको मैं आउन नहीं करता। अब उस खत का जवाब दीजिए जो आपके सामने पेश किया गया। भाई आप ऑन नहीं करते ना, आपके बुजुर्ग तो लिखते हैं ये। आप कौन है? आप तो एक फर्द वाहिद है जी, मैं ऑन नहीं। आपके ऑन करने ना करने से क्या होता है? आपके बुजुर्ग लिखते हैं ये। आपके हवाले माइक। खत का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम यहाँ 3 बंदों ने बात की, तीनों ने इस इबारत को डिसाउन किया। खत का जवाब क्यों नहीं दे रहे? खत का जवाब दीजिए। क्या आप ऑन करते हैं इस इबारत को कि मिर्जा साहब ने खयानत की है अपने उस माल में जो लोगों ने किताब छापने के लिए दिया था? भाई आपके बुजुर्ग लिखते हैं कि नबी वो होता है अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह जो काफिले लूटता है। आप इसको ऑन करते हैं? आपके बुजुर्गों की बातों को आप ऑन करते हैं? कम से कम आधी दर्जन दफा कह चुका हूँ मैं इसको ऑन नहीं करता। कैसे लिख कर दूं आपको? मैं ऑन नहीं करता। ओ भाई आप तो फर्द वाहिद है ना, आप ऑन करने ना करने से। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब मेरी बात तो नहीं करने सरकार, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी। यहाँ से कोई एक लो जी एक और आ गया, एक और आ गया। मैं इसको ऑन करता हूँ। माइक म्यूट रखें शार्प शूटर। एक बंदा भी मुसलमान नहीं कहेगा कि नबी पाक ने कभी काफिला लूटा है। यहाँ तक कि जो मिर्जाई मुखरिज मिनल मिल्ला हैं वो भी नहीं मानेंगे। आप मिर्जाई हैं, आप मानते हैं नबी पाक ने काफिला कोई लूटा? अरे भाई कम से कम आपकी अपने उलमा की तो बात माने ना, उन्होंने तो ये लिखा हुआ है। उलमा की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। भाई आपकी बात तो मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, उलमा लिख रहे हैं। आपकी की बात हुज्जत है कि नहीं?
भाई पहले इस पर सीरत हलबिया पर बात करें, गुस्सा ना करें। सीरत हलबिया का जवाब दे दिया गया है, खत का जवाब आपने पिछले 1 घंटे से नहीं दिया। सीरत हलबिया का जवाब हर टर्न में हमने आपको दिया है, खत को आपने घूम कर देखा भी नहीं। इस खत का जवाब दें, आप इस खत को ऑन करते हैं या नहीं करते, जवाब दें। भाई बात ये है कि आपके उलमा ने सीरत की किताबों में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, किरदार पूरा बयान किया है। अब आप कहते हैं जी आप नहीं मानते, भाई आपके मानने ना मानने से तो कुछ नहीं होता ना, किताबों में तो ये लिखा हुआ है। भाई अगर किताबों में इसके अलावा भी कोई लगब बात लिखी हो तो हमने कब दावा किया है कि हम हर किताब की हर बात को ऑन करते हैं और हर बात सही है? गलत बातें भी लिखी हुई हैं। तो भाई आप कहें ना, आप कहें कि जो भी आपके उलमा ने लिखा है वो सब जो है वो बेकार लिखा है, उन पर कोई एतबार नहीं है, सब किताबों के बारे में लिखे। ऐसे नहीं होता, मेरी बात सुने ना, इसका मैंने आपको तरीका बताया है कि किसी भी आलम दीन की बात अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत है। हर बात गलत नहीं है, आलम दीन की हर बात सही नहीं है। ये जवाब कितनी दफा आपको दिया गया है, अब आप हमारे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? देखें मोहतरम, आप समझने की कोशिश करें। ये पहले तो ज़ियारतुल अमीनी साहब ने कहा कि जी मैं तो मानते नहीं उसको, सीरत हलबिया को बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मुसलमानों की किताब है, वरना तो ये कह रहे थे कि वो शायद ईसाइयों की किताब है। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया था कि ये मुसलमानों ही की किताब है। ये फजूल बात करने का क्या फायदा है? मेरी बात सुने ना, एक ही बात को आप दोहराते चले जा रहे हैं। ज़ियारतुल भाई ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, अमर नज़ीर ने ये कहा, हो गई बात। आपको तीनों ने कहा कि हम किसी ऐसी बात को ऑन नहीं करते जो किताब और सुन्नत से जिसका सबूत ना मिलता हो। नहीं, आप तीनों मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, तो हमारे लिए ये बात हुज्जत नहीं है। भाई आपके मानने न मानने से क्या होता है? ये लिखा हुआ या तो किताबें जलाओ ना। है कि नहीं, आप ये बताएं, हमारे लिए भारत हुज्जत नहीं है। मेरी आप बात सुने, अपनी किताबें रुके एक सेकंड। मैंने कहा ये भारत मेरे लिए हुज्जत नहीं, जो इबारत आपके सामने पेश की गई वो हुज्जत है कि नहीं आपके लिए? पहले आपको इस किताब पर पहले आपका क्या मतलब है? जो इबारत आपके सामने रखी गई, या कहते हैं जिस तरह मैंने कहा कि मेरे लिए हुज्जत नहीं है, या हुज्जत है तो उसको कबूल करें और कहें हाँ मिर्जा साहब ने पैसे खाए हैं लोगों के। आप एक तो बातें नहीं करने दे रहे, मेरी बारी है, बात तो एक ही बात आप करते जा रहे हैं, कोई बात तो बदलनी आपको आती नहीं है। नहीं, वो तो अपने मुफ्ती साहब अगर आपके पास कोई और कोई बात है करने वाली तो वो करे ना। इस बात का तो दर्जन से ज्यादा दफा हमने जवाब दिया, हम इस इबारत को नहीं करते नहीं करते नहीं करते। नहीं, बाबू ने लिखी है भाई, लिखी है, लिखी रहे, खसमा खाए। आप इस इबारत को मानते हो कि नहीं मानते? जो इबारत आपके मिर्जा कादी ने खुद लिखी है। आप मुझे बात तो करने देना। नहीं, और कोई बात कर, क्योंकि आपकी बात का जवाब तो बार बार दिया जा रहा है। हमारी बात का जवाब आपने 1 घंटे से ज्यादा टाइम आपको दिया गया है, हमारी बात का जवाब आपने एक दफा भी नहीं दिया कि मैं इस खत को मानता हूँ, मैं इस खत को नहीं मानता हूँ, मिर्जा साहब ने पैसे खाए हैं नहीं खाए हैं, नहीं जवाब दिया। तो कब तक आपको बात करने दी जाएगी? जी बोलूं मैं, इजाजत है? खत के बारे में बोलें। नहीं तो इसके बारे में, तजारती काफिले के बारे में, इसके बारे में जवाब दे दिया गया है। तजारती काफिले को नबी पाक ने नहीं लूटा, ना साहबा ने लूटा है। भाई आप तो साथ नहीं थे ना, आप मैं साथ नहीं था, आप साथ थे। फिर आप आपके बुजुर्गों ने तहकीक की है ना यार, एक और बंदा आ गया, ऐसा ना करें ना यार, मेरी बारी है। रजूलियत की है नहीं, बात तो ऐसे नहीं है, बात बार बार करेंगे, जवाब देना पड़ता है। कितनी बार सुने बात को? बताएं, इस्लामी कुर्बानी की बात दुरुस्त मानते हैं या गलत मानते हैं? उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने मिर्जा से रजूलियत का इज़हार किया, किताब मिर्जाइयों की है, मिर्जा कादियानी के सहाबी का कौल है ये। वो तो मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की बारात मिर्जा कादियानी का सहाबी है, उन्हें साहब में जो 313 में शामिल थे आपकी किताबों में। मुरीद खास मिर्जा कादियानी का खामोश हो काजी जार मोहम्मद, वो कहता है कि मिर्जा कादियानी के साथ खुदा ने रजूलियत का इज़हार किया था। बताएं, ये किताब मुस्तनद मानते हैं? नहीं मानते। इनकी क्या जरूरत है ये माने? मेरी बात सुने भाई, इनकी क्या जरूरत है इनकार करें? इनकी जरूरत क्या इनकार करें? इनके बड़े मानते, ये कैसे मानते? उस किताब मिर्जा कादियानी का फतवा दिखाएं साहबी पर, इस्लामी कुर्बानी को मानते, मिर्जा कादियानी का फतवा दिखाएं काजी पर। अमर नज़ीर साहब दे मुझे ये कि काजी जा रहे बात रोज लिखी है या गलत लिखी है, किताबों में मौजूद है। उस सरकार में किताबों में तो मौजूद है, मुझे जवाब दो, बात रोज है या गलत है। असल में ना इस तरह की बात जब होती है ना फुरकान फोरस साहब, तो वो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा होता है। जब आप हमारी बात का जवाब ही नहीं देना चाहते
बार बार एक बात को चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, और भी बंदे बुला लो। नहीं बंदा, तो आप जब बात कर रहे हैं तो फिर ये बीच में आ गए। 5 मिनट मुझे दे देंगे, किस तरह से होता है आपके हाँ हाँ, आपको देते हैं 5 मिनट, आपको देते हैं। अमन अजीज साहब थोड़ा 5 मिनट सुने, मैंने उसको भी बाहर भी नहीं आया है, मैंने उनको भी खामोश करवाया हुआ इसीलिए कि ये बंदे तो चाहते हैं कि हम आपको इनके हवाले कर दें कि अभी 2 मिनट में आपकी तबीयत ठीक, लेकिन ये नहीं है हमारी ब्रॉड पे, इस तरह हम नहीं होने देते। हमने उनको खामोश करवाया हुआ जबरदस्ती कि हम किसी अपने ब्रॉड पे आए हुए बंदे के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहते। आपसे बड़े अदब से आखिरी बात पूछा जा रहा है, आपके पास इस खत का कोई जवाब है? आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, ना मुझे बात करने का मौका देते हैं। वो एक ये मलक ऐवान क्या नहीं मेवान साहब ये तशरीफ ले आए हैं, ये जज्बाती आदमी है। भाई आप सारे, आप ऐसा करें ना, अपने सारे दोस्त बुला लें इकट्ठे, क्योंकि आप अकेले से तो ना हो पाएगा ये। आप खुद चाहते हैं कि सारे इकट्ठे होके आपकी इंटेरोगेशन करें? ओ भाई मैं तो पहले ज़ियार रसूल अमीनी साहब से बात कर रहा था ना, आपके सामने वो गए, उसके बाद झंडा थामा, मैं भी पहले उनसे गए ना, वो गए ना भाई, बिजी थे तो नहीं बात करनी थी ना, मेरी बात सुनो भाई बिजी थे तो नहीं बात करनी थी ना। सबर ज़ियार रसूल भाई से पहले मैं गया, मैं आपको क्या गया, मैं बिजी हूँ ज़िया भाई बात करेंगे, वो बिजी हो गए, दिन का टाइम है, वो बिजी हो गए, मुफ्ती साहब बिजी हो गए, फिर मैं आ गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने इस खत का जवाब देना है या नहीं देना, या चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ये 3-4 बंदे मिलके आपके साथ बात करें? हाँ जी, मैं जवाब दे दूं? दे खत का जवाब दे। ये जवाब तो मैं, ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ कि आपने किताब का जो मैंने हवाला पेश किया, एक ही हवाला पेश किया पूरी ब्रांड में, एक ही हवाला। उस हवाले को हमने जूते की नोक पर रखकर ठोकर मारी है कि हम इस हवाले को नहीं मानते। भाई आप मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, आप जो मर्जी करें। तो फिर जिसके अच्छा जो इस हवाले को हुज्जत मानते फिर उससे जाके बात करें। भाई सरकारी मुसलमानों की किताब है, उन्हीं से बात हम करेंगे। सरकारी मुसलमान नहीं हैं। आपको किसने कहा कि हम सरकारी मुसलमान हैं? भाई जिसको सरकार का है मुसलमान, वो सरकारी मुसलमान होता है। सरकार ने कहा है मुसलमान, अगर वो इसको आउन करता है तो फिर आप ये हवाला उसके पास ले जाएं। हम इस हवाले को आउन नहीं करते। ये इस तरह के हवाले सीरत की कुतब में, तारीख की कुतब में बहुत सारे लिखे मौरखीन जिनका ना कोई सेहरा ना कोई पैर है। भाई सारी सीरत की किताबें आप जलाएं, आग में डालें। क्यों जलाएं? जो लोग पढ़ने वाले वो फैसला कर लेते हैं, ये किताबों सुन्नत के मुताबिक है, पढ़ के सामने से सुना तो रहा हूं, देखो ना। मेरी बात सुने, आपने स्कैन भी नहीं पेश किया, जबानी भी हमने आपकी बात तस्लीम करके हमने कहा अगर ऐसा लिखा भी हुआ है तो हम इसको ऑन नहीं करते, बात खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि आपने स्कैन भी पेश नहीं किया, तो इसलिए हम तो इस तरह की बातों को ऑन नहीं करते। आपके सामने जो बात पेश की गई है, 1.5 घंटा हो गया, आप जवाब नहीं दे रहे। मिर्जा साहब ने किताबों के पैसे खा लिए थे, लोगों ने उनको बराहीन अहमदिया लिखने के लिए पैसे दिए थे 10,000 रुपया, खयानत कर दी थी मिर्जा साहब ने अमानत में, हाँ या ना? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक नबी झूठ मार कर सकता है? ओ भाई, आपके सवाल का जवाब दर्जन से ज्यादा दफा दिया गया है, अब आपसे सवाल किया जा रहा है। आप तो मानते नहीं, आप कहते कि हम दोगे या नहीं दोगे? मैं बात कर लूं अब? देखिए नहीं, अपनी इज्जत करवाए ना, आप बात करें लेकिन अपनी इज्जत करें। आप मेरी भले इज्जत ना करें, बस स्कैन का जवाब दें। इज्जत को, मेरी बात सुने, आप जानबूझकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं।